Hey guys, Arnav here from Coding Blocks, and today we are going to be talking about something जो आप लोगों में से काफ़ी लोग जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे कुछ ऑनलाइन और लाइव क्लासेस में पढ़ते हैं, जो मेरे पहले स्टूडेंट्स रह चुके हैं क्लासरूम प्रोग्राम्स में, अभी वो थर्ड और फोर्थ ईयर में हैं। कई लोग पूछ रहे हैं, कई बार बोले हो आप लोग लास्ट मेरे कुछ वेबिनार्स में भी a lot of people asked about it. तो yes, it's about placements, jobs, and like what's the situation with the industry right now because of the coronavirus pandemic, and what has changed, what has not changed, how do you what are things that you should start doing, how your job hunt should change, a lot of these things, right? So first of all, I think let's address something really important here is the reality around us. I mean, there's the directions that the government is giving is like लॉकडाउन ख़त्म और अनलॉक वन स्टार्ट हो रहा है या जो भी है, मतलब कुछ रूल्स ईज डाउन हो गए हैं और आप बाहर जा सकते हो, पुलिस डंडा नहीं कर रही है, ऑल ऑफ दैट स्टफ वो एक जगह। एंड द अदर थिंग इज़ सी वी हैव 3 lakh cases in India right now, and every day 10,000 new cases are coming up. The numbers are going to be going up, and I think there are a lot of experts who have worked with epidemics and pandemics, and what they say is probably July, mid अगस्त probably तब तक हमारे इंडिया में जो नंबर्स हैं वो बढ़ते जाएंगे और उसके बाद घटने के चांसेस हैं. It's a big country, India is a big country, and even in USA for example, which is they have 300 million population. India में 1.3 1.4 billion की population है, तो their population is almost 1/5 of us, right? तो उनकी पॉपुलेशन में भी लाइक आई थिंक दे वेंट अप टू 20,000 केसेस पर डे, और उसके बाद 20,000 ही चले जा रहे हैं, काफ़ी टाइम 20,000 चले जा रहे हैं. इट्स नॉट कमिंग डाउन फ्रॉम 20,000 केसेस पर डे. इवन इन कंट्रीज़ लाइक यूरोप एंड ऑल, लाइक लाइफ हैज़ चेंज्ड. इवन ऑल्दो उनके केसेस जो 10,000 दिन में हो रहे थे, वहाँ से वो 50-60 केसेस दिन में काफ़ी कंट्रीज़ कम होकर आ गई, जर्मनी, स्पेन, इटली वगैरह ये सब कंट्रीज़. सो आई थिंक जैसे फ़्लाइट्स की बात करें तो ऑफकोर्स आई थिंक दिन में हज़ारों फ़्लाइट्स उठते थे इंडिया में पहले, और आजकल कुछ आई थिंक 15-20 फ़्लाइट्स चल रही हैं ऑल ओवर इंडिया. बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटीज़ के बीच में क्रूशियल फ़्लाइट्स चल रही है, और लोगों को कुछ एमरजेंसी नीड्स है तो सिर्फ वही ट्रैवल कर रहे हैं, राइट? एंड सिमिलरली लाइक देर आर इंडस्ट्रीज़ लाइक अगर मेक माई ट्रिप हो या क्लियर ट्रिप हो या इक्सीगो, ऐसे कोई कंपनीज़ हो. ऑफ कोर्स इनका धंधा बहुत अच्छा तो नहीं चल रहा है, राइट? एंड दे हैव पीपल एट हाफ सैलरी. They have laid off people, they are not hiring people. It's the reality. तो अभी मैं जैसे जोमेटो का एक्चुअली शर्ट पहना हुआ है. आई वॉज वर्किंग एट जोमेटो थोड़े टाइम पहले तक, मार्च तक, इनफैक्ट मार्च से पहले तक आई वॉज वर्किंग देयर. एंड जोमेटो is like when I was there, as far as I remember, like a lot of profit was made out of the people going out to the restaurants and dining out. Like Zomato Gold की memberships थी that used to make a lot of profits, right? Or like say a company like Dine Out, right? Easy Diner. These companies, they just don't have an existence right now anymore. I mean restaurants, कुछ बड़े रेस्टोरेंट जो है वो वापस खुल भी गए हैं, बट कोई जाके खा थोड़ी रहा है अभी, because the reality is like going outside the home and interacting with people is still risky, whether or not the government says lockdown is there or not there. Everybody knows that. So there are industries, there are segments where the life is not back to normal, most industries in fact, and which means that those industries who were big employers in tourism, eating out, luxury, ये सब बहुत बड़े बड़े employers थे, मतलब काफ़ी हज़ारों लाखों लोगों को एम्प्लॉय करते थे. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के डोमेन में ही हज़ारों लोगों को एम्प्लॉय करते थे. तो दैट एंटायर इंडस्ट्री इज़ काइंड ऑफ डाउन एंड आउट. बट ऑफकोर्स इसी टाइम में ये भी है कि I know for a fact, because I have some friends who have recently shifted to companies like Hotstar, right? MX Player, टाइम्स इंटरनेट के अंडर है. ये ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के कंपनीज़ हैं. कई नई फीचर्स ऐड कर रहे हैं ये लोग. लोड काफ़ी बढ़ गया है, लोग घर बैठे हैं, सब एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें कर रहे हैं, राइट?
और आजकल कंटेंट भी क्रिएट होने लगे। इनिशियली ये था कि मतलब नया कंटेंट कहाँ से क्रिएट होगा, लोग घर पे बैठे हैं तो वीडियो शूटिंग कहाँ से होगी, बट कई कॉमेडियंस घर पे बैठे शूट कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंटेंट एंड कंटेंट इज़ ग्रोइंग। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये भी ग्रो करेंगे ही। ऑनलाइन गेमिंग की कंपनीज़ हैं, एपिक गेम्स हैं, फोर्टनाइट जो बना रहे हैं और पबजी बनाते हैं, तो ये तो ग्रो कर ही रहे हैं। छोटे छोटे गेम्स भी लॉन्च हो रहे हैं। एनिमल क्रॉसिंग, निंटेंडो इज़ लाइक मेकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स एनिमल क्रॉसिंग वाले गेम को लेके। तो there are domains which are growing as well. Utility, as far as staying at home and working is considered, Slack, Zoom, ये कंपनीज़ ने काफ़ी ग्रोथ देखा है, और इंडिया में भी ऐसे कंपनीज़ हैं जो लोग रिमोट वर्किंग को इम्प्रूव करने के डोमेन में स्पेशली काम करते हैं, तो दोज कंपनीज आर सीइंग ग्रोथ. सो लाइक योर जॉब हंट strategy will of course have to take this stuff into consideration. You will have to look for domains and industries which are either not affected by COVID-19 or they are positively affected by COVID-19, because there are a lot of industries which are positively affected by COVID-19 as well. Like दुनिया में कोई भी चीज़ किसी बीमारी से तो पॉजिटिवली नहीं अफेक्ट हो सकता, बट I mean economically speaking, right? Because we are considering looking for jobs and placements and all. Now, the other point here is about what has changed as far as hiring process goes, and how companies are looking for candidates, and what's the hiring process like. And I think there is a shift there. It's a mindset shift. It's a approach shift, and it's happening slowly. छोटे कंपनीज़, मिड साइज़ कंपनीज़ में धीरे धीरे एक शिफ्ट आ रहा है. बड़े कंपनीज़, गूगल टाइप ऑफ कंपनीज़ में या अमेजोन टाइप ऑफ कंपनी में ये शिफ्ट आना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होता है. बट द थिंग इज़, आई नो फॉर अ फैक्ट, आई मीन व्हेन लाइक at Zomato last time, like the batch of freshers joined. In fact, last year अभी Zomato में जो freshers join किए थे, तो आई थिंक 30-35 स्टूडेंट्स में से आधे फ्रेशर्स में से आधे ऐसे लोग थे जो मेरे स्टूडेंट्स रह चुके थे. इट वाज अ वेरी नाइस सरप्राइज फॉर मी. सो lot of those people were juniors from DTU. Lot of those people were people whom I had taught web development or Android. Ritesh, Dhruv, Anubhav, many people, yeah, right. So I was part of the team that designed the program that we had for onboarding people. So when they come in, we have like a session with the CTO, then we have a session with the tech leaders, then we have a product development session, we have a backend and a Android development session. सब कुछ कराते हैं जो freshers आते हैं उनको Zomato की टेक्नोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग देते हैं, थोड़ा चीज़ें प्रैक्टिस करवाते हैं, किसी मेंटर के साथ पेयर प्रोग्रामिंग करने के लिए बिठा देते हैं. और ये हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ही होता है. इट्स नॉट स्पेसिफिक टू Zomato, राइट. तो ये जो सारा प्रोसेस है, अगेन व्हेन फ्रेशर्स आर गेटिंग ऑनबोर्डेड, दिस प्रोसेस डज नॉट एग्जिस्ट. एंड तो क्या है कि जो बहुत ही बड़े कंपनीज़ है, से माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, अमेजोन है, तो ऐसे कंपनीज़ में जो लोग करते हैं काम, या अपने किसी सीनियर को, भाई बहन को करते हुए जानते हैं, तो यू गाइस नो व्हाट हैपेंस इज इन दिस कंपनीज, दे हैव वेरी वेल लेड डाउन प्रोसेसेस. तो इनकी इंटरनल पोर्टल होती है, इंटरनल पोर्टल के ऊपर जाके ट्रेनिंग्स होती हैं लैंग्वेजेस के, फ्रेमवर्क्स के. और मतलब ऐसा नहीं होता कि जैसे गूगल टाइप की कंपनी में कोई फ्रेशर ज्वाइन करे तो उसके बगल वाली सीट पे कोई सीनियर बिठा दे और वो तभी ऑनबोर्ड कर पाए उसको, नहीं तो ऑनबोर्ड नहीं कर पाएगा. ऐसा नहीं है. दे हैव देयर बेटर प्रोसेसेस, दे हैव ट्रेनिंग मटेरियल्स, दे हैव कोर्सेज, इंटरनल कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेशंस होते हैं इंटरनल, एंड ऑल ऑफ दैट इफ दे डू, देन दे आर एबल टू मूव ऑन टू द they are able to understand the systems and all of that stuff. बड़े कंपनीज में ऐसा होता है. If you talk about say a company which is 100 employees, and even if they have taken up some funding, $10-20 million funding उठाई है, तो that's a reasonably good company. These kind of companies are giving you job offers of 10 lakh 15 lakh CTC, right? So these are good job offers. But ये companies में जो ये process होता था onboarding का, that used to be very ad hoc and very human based. टेक लीड के साथ एक दिन बैठे लंच पे डिस्कस किया चीज़ें, फिर आपके जिस टीम पे काम करोगे उस टीम के किसी सीनियर डेवलपर के साथ रोज़ उठना बैठना हुआ साथ में, तो देन ओनली यू अंडरस्टैंड थिंग्स. दैट वाज द सिचुएशन इन दीज कंपनीज. एंड इवन कंपनीज एज बिग एज से Zomato is, I think the tech team was 300 people, right? And that's a company that has raised $700-800 million of funding.
राइट, करोड़ों की कंपनी है, 100 करोड़ रुपए की कंपनी है। तो ऐसे कंपनीज में भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट तो हम जो लोग ऑनबोर्ड करते थे, दो तरह के लोग होते थे जनरली। कुछ ऐसे लोग जिनको हमने हायर इस वजह से किया क्योंकि वो रिएक्ट या एंड्रॉयड या बैक एंड डेवलपमेंट या कुछ ना कुछ अच्छे से जानते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, और हमने किसी हैकाथॉन में हायर किया उनको, या फिर हमने कहीं जोमेटो में आके उन्होंने पेयर प्रोग्रामिंग करी है, एक हफ्ते की ट्रायल वीक करी है, फिर हायर किया है। तो ऐसे लोगों को फिर भी आई थिंक टू असाइन अ प्रोजेक्ट एंड गेट स्टार्टेड विद इट्स ईजियर। बट जो लोग कॉलेज से हायर होते थे, DSLGO के क्वेश्चंस पूछ के हायर होते थे, सिस्टम डिज़ाइन पूछ के हायर होते थे, तो उनके साथ दिक्कत क्या होती है कि दे डोंट हैव एन आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, मतलब उनको गिट का ही नहीं पता होता, ठीक है। और ऐसे लोगों के साथ काम करना पॉसिबल नहीं है रिमोटली इनिशियली। मतलब उनको बोलो कि यार ये प्रोजेक्ट क्लोन करो, नहीं क्लोन क्या होता है भाई, मतलब दैट्स द काइंड ऑफ सिचुएशन, दैट्स द रियलिटी। एंड आप लोगों में से कई लोग ये वीडियो शायद देख रहे होंगे, एंड इफ़ यू हैव ओनली डन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, ओनली डन C++, जावा स्टफ, यू वुड बी एट दैट लेवल। सैडली दैट्स नॉट व्हाट is enough for you to get started working with these kind of companies. So I have spoken to some रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो लोगों को हायर करते हैं और कंपनीज़ के लिए हेल्प करते हैं. आई स्पोकन टू सम CTOs, some VP engineering kind of people. I have friends in companies like say Vedantu, Doubtnut, then Camp K12. Then these are all fast growing educational companies these days. Then at Zomato as well, at Hotstar, at Times Internet, Ola. I've spoken to a lot of people who are hiring people these days in these companies. Then there is Code Judge. I have my good friends Nilesh and Krutika who are running that company. जो लोग क्या करते हैं कि basically लोगों को hiring वाले process को easier करते हैं. They take tests for people and they help them connect to companies. And what I'm seeing is that there is a shift in the way companies are looking towards hiring people, and they are thinking in a very different way, thinking कि यार हमें ऐसे कोई लोग मिल सकते हैं क्या जिनको API बनानी आती हो पहले से, हम बोल दें कि ऐसी API बनानी है, ये बना देंगे, या हम बोलेंगे कि यार ये API है, इसका फ्रंट एंड बना दे, ये डिज़ाइन है, दे के बना दे, रिएक्ट में बना दे, Vue.js में बना दे, एंगुलर में बना दे. क्या बना पाएंगे? एंड्रॉयड का ऐप है, बहुत बड़ा सा ऐप है, उसमें पहले दिन क्लोन करके ऐप प्रोजेक्ट को समझ पाएंगे और छोटे मोटे बग्स उठा के सॉल्व कर पाएंगे? ऐसा है कि नहीं है? तो दैट्स द काइंड ऑफ अप्रोच दैट हैज़ हैपेंड, दैट शिफ्टिंग. Right, I see that shift happening. I see the people who are hiring to start thinking in these terms. So let me tell you something, and this is very important, and you might realize this when somebody else gets ahead in the line, and you start not being able to crack a lot of interviews, and then you start realizing this, that then it will be too late. I'm giving you an early indication, but सिस्टम डिज़ाइन की स्किल्स और एक बैकएंड की API वगैरह बनाना, ठीक है, आर्किटेक्चर बनाना, कोई बोले ट्विटर जैसे सिस्टम की API कैसे बनेगी, या रेडिट जैसा प्लेटफॉर्म कैसे बन सकता है, या फेसबुक जैसा सिस्टम कैसे बन सकता है, और या किसी ने कोई छोटा सा API बनाने को दे दिया कि यार एक फ़ोटो अपलोड करने की API बना दो, इमगुर जैसा ऐप बना दो, ठीक है. तो दैट इज़ हाउ कंपनीज आर स्टार्टिंग टू evaluate people. Most companies are giving you take home assignments for one day एंड टेलिंग यू कि ये बैकएंड का प्रोजेक्ट है भाई, तू करके ले आए एक दिन में और फिर हम देखेंगे. दैट्स व्हाट्स हैपनिंग. सो लेट मी वार्न यू गाइज, इफ यू थिंक दैट DSLGO skills alone are going to let you crack companies. I think आज के डेट में स्टिल द वेरी बिग कंपनीज, गूगल, फेसबुक, उबर, अमेजोन, यहाँ पे फिर भी पॉसिबल है because they have their own way of hiring people. That process is there. But as you think of one step below, and like the entire bunch of companies, they are good companies, they are good offers, there are a lot of opportunities out there, they are paying you 10, 15, 20 lakh CTC, freshers out of college, but the requirements are changing because आपको हायर करने के बाद आपको वो सिखा नहीं पाएंगे क्योंकि आप घर से बैठ के काम करोगे, ठीक है. तो they want people who already know things, who already have learned things, जिनको ऑन बोर्ड करने के बाद सिखाने में टाइम नहीं लगे.
So they want people who can, you know, day one रिक्वायरमेंट उठाए, बग्स देखें, उठाए, सॉल्व करने लग जाए, रिक्वायरमेंट उठाए, फीचर्स बनाने लग जाए, एंड दैट्स द लेवल दैट दे वांट. And for that, I think you guys should, if your DSA skills are good, you're able to crack, you know, good interview questions in linked list graphs, trees, hash maps, right? ये सब आप कर पा रहे हो. तो I think the very next step is कोई ना कोई बैकएंड फ्रेमवर्क सीखो, चाहे आप जावा सीखो, जैंगो सीखो, नोड.js सीखो, whatever it is. Learn how to, you know, take the requirements for making an API, right? फाइल अपलोड करने की, फाइल शेयरिंग करने की ऐप बनानी है, उसकी API बनानी है, इस टाइप की चीज़ें सीखो, बनाओ, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाट ऑल कंपनीज आर लुकिंग फॉर. एंड you have to, you know, work towards that. That's how everybody is hiring these days. So you just have to prepare for that. So I hope this helps, whatever you're preparing for. If you are looking for ways to prepare for, you know, backend stuff, we have some backend courses at Coding Blocks. If you want to take them up, say there is the web development course, there is a Django course. If you want to take those up, there's a lot of free resources on the internet. Coding Blocks से कोर्स करना ही ज़रूरी नहीं है, बट ये टॉपिक्स को करना ज़रूरी है. You need to be at a level where you can build projects and showcase, because that shift in hiring is happening, and it's happening right now. You need to be ahead of the curve, you know, especially if you are in 4th year. If you are ending college and you're looking for immediate jobs, then that's even more important. If you are still for the placement season, 3rd year end हो रहा है आपका, तो there's a lot of time for you to figure out things. But for people in the final year, you know, just do this, okay? So I'll meet you guys next time we have a webinar or a video or something. Till then, stay home, stay safe, and wash your hands, wear masks, don't go out too much. Cases are increasing. Okay, all the best.